Good morning, everyone. In previous class, we were studying about ray optics. In that topic, we were studying subtopic refraction of light. So we have seen refraction laws, causes of refraction, and refractive index. And then we have studied about the refraction through a glass slab, and we have seen what is lateral displacement is. Now, today we are going to start and try to end the refraction part by studying total internal reflection also. So firstly, refraction through a combination of media. Sometimes in nature there is not only single media, there is multiple level of refractions, means there are different level of refractive index medias. मीन्स एक ही सरफेस में, जैसे जमीन से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ एयर कीप्स चेंजिंग. That is why we usually face different refractive indexes at different height. Alright, so refraction through a combination of media is very important for understanding the natural phenomena. So firstly, how it works and what we want to prove. So let's start by considering a figure. Consider this. In this figure we have considered three different media actually: air, water, glass. All right, so I am naming it as 1, 2, 3. It will be easy to write 1, 2 and 3 in respect means उसकी जगह पे वाटर ग्लास जो बार बार लिखना पड़े उसके जगह पे. So we want to prove that the ultimate the final result will be the combination of these three medias. All right, so here all the boundaries are actually parallel planes. So firstly consider an incident ray. Consider this as incident ray A, B. All right, now as we want to make a proper normal, as air is denser with respect to water or rarer with respect to water, so there will be slight change. सॉरी, नॉर्मल मुझे अलग से बनाना चाहिए. यहाँ पे एक और नया इंटरफेस मिल गया. देन इट विल undergo just because water and it is glass, so it is more denser. तो ये कुछ और थोड़ा सा हो गया. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा. Now it is denser to rarer. It is again air here. So again it will go refraction, but this time it is opposite in direction. तो यहाँ मैं सबसे पहले इसका जो ओरिजिनल पाथ रहा होता वो बना लेता हूँ. Alright, now this time this will go further refraction, but this time away from the normal because it is moving from denser to rarer. All right, name it as point C, it as point D, and it is E. All right, so it is our incident ray and this one is our emergent ray. The angle of emergence is equal to the angle of incidence. We have seen it. So if this is I, consider this angle as R1, refraction angle 1. This as just because it is R1 तो ये वाला भी R1 ही होगा, अपोजिट ये अल्टरनेट एंगल, क्योंकि दोनों ये लाइन आपस में पैरेलल है. ये R1 है और यहाँ पे इसको मैंने एंगल माना, ये जो रिफ्रैक्शन एंगल नीचे वाले के लिए हुआ R2, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा R2. लेकिन ये जो फाइनल एंगल होगा इट विल बी इक्वल टू दिस वन.
ये हमने पीछे प्रूफ किया था, याद करिए। तो दिस विल बी आई। सो फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, हम इसको 1 बाय 1 लिखते चलते हैं। फॉर द रे मूविंग फ्रॉम 1, देखिए मैं मीडियम 1 टू मीडियम 2 नहीं लिख रहा हूँ, 1 to 2 ये मीडियम का नाम है, खुद से समझ जाइएगा। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी μ2 बाई μ1 कहेंगे ना, क्योंकि मान लीजिए μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 इसका है μ1, ठीक है, इसका है μ3। तो μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन R1, क्योंकि रिफ्रैक्शन एंगल फर्स्ट वाले का 1 है। अब ये दूसरा वाला R1 इसके लिए इंसिडेंस एंगल का काम कर रहा है ना, तो फॉर रे मूविंग फ्रॉम 2 to 3 μ3 बाई μ2, इसको मैं डिनोट कर देता हूं 1 μ2 से, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं हमेशा से करता आ रहा हूं। अभी μ3, 2 को ऊपर रखना है, ये आगे नहीं रखना है मल्टीप्लाई में, ऊपर है पावर, ऊपर पावर टाइप का लेफ्ट साइड में प्रीफिक्स। इट इज इक्वल टू साइन, अब इंसिडेंस एंगल इस बार R1 है और रिफ्रैक्शन एंगल R2 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर रे मूविंग फ्रॉम दिस टाइम 3 to अगेन 1, क्योंकि एयर में जा रही है, 3 to 1 है ना, नीचे भी तो एयर है। सो इट इज μ1 बाई μ3, इसको लिख सकते हैं μ3 और इधर पावर में 1। सो इट इज इक्वल्स टू, पावर क्या मतलब, वो प्रीफिक्स है, साइन, अब इस बार इंसिडेंस एंगल क्या बन गया, R2 बन गया ना, और ये रिफ्रैक्शन एंगल I, साइन R2 अपॉन साइन I। नाउ मल्टीप्लाइंग अबव 3 इक्वेशंस वी विल गेट, देखो यहाँ पे μ1 बाई μ2, μ3 बाई μ2, ये जो भी कुछ है इसके मैं ये वाले टर्म्स लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक चीज दिखानी है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई 2 μ3 मल्टीप्लाइड बाई 3 μ1 इज इक्वल्स टू साइन I बाई साइन R1 मल्टीप्लाइड बाई साइन R1 बाई साइन R2 मल्टीप्लाइड बाई साइन R2 बाई साइन I, सभी यहाँ मिल रहे हैं, सो इट इज इक्वल्स टू 1 एंड वी कैन से 1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई 2 μ3 मल्टीप्लाइड बाई 3 μ1 इट इज इक्वल्स टू 1। और इस तरह के एक नहीं, आप 50 बीच में मीडियम ले आइए, हर बार आपको रिजल्ट 1 ही आएगा। सो we can say by knowing the refractive indices of any two media like glass and water with respect to air, glass का और water का with respect to air निकाल के the refractive index of glass with respect to water और vice versa can be calculated. How? मैं चाहता हूँ वाटर का ग्लास में, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में या ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में और ग्लास का वाटर के। इसको क्या कहेंगे, जब मैंने बताया था कि किसी, देखिए एयर हो या वैक्यूम हो वो एक चीज़ है, किसी मटेरियल का किसी दूसरे मटेरियल के रिस्पेक्ट में जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन जब किसी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ऑलराइट, तो अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो दोनों के, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप ग्लास का निकालें एयर के रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है ना, ये 2 वाटर, ये 2 μ3 से डिनोट किया गया है ना, तो 2 μ3 यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई 3 μ1
ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो 1 म्यू 2 का मतलब हुआ 1 म्यू 2 का मतलब हुआ 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, यानी वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में। ये मामला तो सही है, लेकिन यहाँ पे ये एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में, इसको उल्टा करके ना लिख दें। 3 म्यू 1 को 1/1 म्यू 3 लिख सकते हैं, हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा है। तो इसको हम लिख देते हैं 1/1 म्यू 2, तो ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/, फिर से 1 म्यू 3 लिख सकते हैं ना। अब इस वाले को ऊपर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 म्यू 3/1 म्यू 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, नहीं ये ग्लास है ना, 3 है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब किसी का भी जब एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो होता है असल में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ वाटर। अगर हमें ये पता हो दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इनका रेशियो क्या होगा, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑलराइट, तो इस वजह से इसको पढ़ाया जाता है या बताया जाता है, ताकि आप 2 से तीसरे का निकाल पाएं। मैं इसको और शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, थोड़ा समझने के लिए आपका अच्छा लगेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जी से डिनोट किया, विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये अच्छा लग रहा है देखने में, नाम भी दिख रहा है प्रॉपर, ये ठीक है। तो ये हो गया। तो हम इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं अगर हमें कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हो। नाउ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्हाट कुड बी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने 10th क्लास में पढ़ा था, मैं क्विक से उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे था। कि मान लीजिए किसी एक बाउल है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन हेडिंग डाल लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, हजारों लाखों मिल जाएंगे आपको एप्लीकेशन, लेकिन अभी हमें बेसिक सा जो लैब में हम लोग किया करते हैं उसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई बाउल है जिसमें कोई, या बकेट है जिसमें कोई सिक्का पड़ा हुआ है। अब आपको तुरंत याद आ गया होगा हम किस वाले की बात कर रहे हैं। कंसिडर दिस एज अ कॉइन, दिस हियर वी हैव अ कॉइन, ऑलराइट। वाटर लेवल इज फिक्स्ड हियर, यहाँ तक वाटर लेवल भरा हुआ है, ठीक है। नाउ कंसिडर द रे, रियल डेप्थ इसकी कितनी है, यहां से यहां तक है, क्या इसकी रियल डेप्थ, असली गहराई सिक्का जमीन में पड़ा है ना, मतलब एकदम तलहटी में पड़ा हुआ है, रियल डेप्थ हुई है। नाउ द कॉइन, द रे इमर्जिंग फ्रॉम द कॉइन मूव लाइक दिस। मान लीजिए अगर वो सीधे ऐसे चलती है, परपेंडिकुलर वाली रे यहां निकलेगी तो सीधे चली जाएगी ना, है ना। और अगर कोई रे बेंट होके निकलती है तब उसके साथ क्या होगा उसको देखते हैं। मान लीजिए किसी एंगल पे निकली, यहां पे निकली, ठीक है। तो ये रे ऐसे को जा रही है, हियर इट कम्स द इंटरफेस, हियर रिफ्रैक्शन विल अकर, जहां इंटरफेस होता है वहीं रिफ्रैक्शन होता है। एज इट इज मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर, इट विल अंडरगो रिफ्रैक्शन विद रे मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो रे नॉर्मल से दूर हट गई। सो दिस इज आवर ओ पॉइंट, कंसिडर इट एज ए पॉइंट एक रे के लिए, बी पॉइंट दूसरी, ये से हो गया, इस वाले को कोई और दे दो डी। अब देखो क्या होगा, ये रे जब दो रेज आपस में कट करती हैं वही इमेज बनती है।
तो जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर से ऐसे देख रहा होगा तो उसको यहाँ से मान लीजिए वो देख रहा है, ये हमारा आई है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको वो सिक्का वहाँ नहीं, जहाँ ये दोनों रेस कट करेंगे, इसको पीछे बढ़ा रहे हैं हम, तो पीछे बढ़ाने के लिए मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ। ये पीछे बढ़ा रहे हैं हम, तो कहाँ कट किया, यहाँ कट किया। तो ये दो रेस जहाँ कट करेंगी, इमेज फॉर्मेशन यहीं पे हो रहा होगा, इट इज आई पॉइंट। सो दी आई विल ऑब्जर्व दैट द कॉइन इज एक्चुअली हियर नॉट हियर। आई को कैसा फील होगा, द कॉइन इज एक्चुअली हियर, सो द डेप्थ ऑब्जर्व बाई द आई विल बी दिस मच, जहाँ पे वो ऑब्जर्व करेगा। तो इस वाली डेप्थ को कहते हैं एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ। तो ये आपको याद आ गया होगा, इट इज वन एग्जाम्पल ऑफ एपेरेंट रिफ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है जो क्वेश्चन में यूज आता है, इसलिए मैं जल्दी से उसको प्रूव कर दे रहा हूँ। ये बहुत टफ चीज़ नहीं, इसलिए मैं बहुत टाइम नहीं दे रहा हूँ। हम यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, इट इज बी आई, इट इज बी ओ। ये एंगल देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से चला तो इंटरफेस पे एंगल ये वाला आई बनाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस विल ऑल्सो बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि आई ही होगा, मतलब ये अल्टरनेट एंगल, ये आई होगा। रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, रिफ्रैक्शन ये वाला हो रहा है ना, इफ दिस इज आर तो ये वाला, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल दिस विल ऑल्सो बी आर। तो अब हम दो ट्राइंगल्स लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल ए बी ओ में देखते हैं, ए बी ओ में, या हम ऐसे कह लें साइन आई। अब साइन वाला आई वाला ट्राइंगल कौन सा है, ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी। तो साइन आई कितना हो जाएगा, एंगल के सामने वाली ये साइड है ना ए बी, ठीक है ना, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस क्या है ओ बी, ओ बी लिख लिया, एंड साइन आर, ये भी छोटा वाला ट्राइंगल ए बी आई, साइन आर विल बी ए बी अपॉन बी आई, ए बी अपॉन आई बी लिख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो दिस टेक रेशियो साइन आई बाई साइन आर, इट इज इक्वल्स टू बी। देखो यहाँ जब इस रेशियो लेंगे तो ओ बी आएगा, आई बी सबसे टॉप पे चला जाएगा, तो आई बी अपॉन ओ बी ये लिख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ बी आई और ए आई लगभग बराबर होंगे, क्योंकि ये जो ए बी डिस्टेंस है ये बहुत 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 छोटी है, ठीक है। तो बी आई और बी से आई तक की डिस्टेंस और ए से आई तक की डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। क्यों, क्योंकि हमारी आंख जो देख रही है, मैंने दूर बना दिया, असल में प्यूपिल पे बनने वाली इमेज है, इसको पूरी ये आंख है, ठीक है, इस तरह से। तो प्यूपिल पे जो इमेज बनी, चूंकि प्यूपिल छोटा है तो ये डिस्टेंस भी बहुत छोटी, तो दिस कैन बी रिटन एज ray will enter eye only if B is very close to A। तो ऐसे केस में अगर A और B बहुत पास हैं तो BI और AI बराबर होगा। सो AB very small, और we can say AI is equivalent to BI। ऑलराइट, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ और जोड़ सकते हैं, OB जो है वो AO के बराबर है ना, AO is equivalent to OB। तो अब इन दोनों को यही रख देते हैं, AO और AI। तो AI IB कहाँ गया, हाँ AI, और इसको लिख सकते हैं OB को AO, ठीक है। ये देखो साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। आई से आर में रे कहाँ से चल रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है ना, तो वाटर से एयर में जा रही है, तो म्यू टू बाई म्यू वन होता है, तो एयर अपॉन वाटर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू ए अपॉन म्यू वाटर, और यहाँ पे लिखेंगे म्यू ए अपॉन म्यू डब्लू। इसको एक और चीज़ लिख सकते हैं, डब्लू म्यू ए लिख सकते हैं ना। तो जब ये ऐसा है तो ए म्यू डब्लू क्या होगा, ए म्यू डब्लू इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस, सो इट इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए आई।
तो ए म्यू डब्ल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज AO अपॉन AI। लेकिन AO अपॉन AI है क्या? AO इज द रियल डेप्थ, AI इज द अपरेंट डेप्थ। सो वी कैन से दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर जो भी मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना ये म्यू डब्ल्यू, म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equals to real depth upon apparent depth, real depth upon apparent depth. Now this is what, this is the apparent depth। तो यहां से हम apparent depth भी निकाल सकते हैं अगर वो दिया हुआ हो। अब देखिए एक और चीज कहते हैं कितना ऊंचा, देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहां से यहां तक का, यहां से कितना शिफ्ट हुआ, इसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये वाले को कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ये हो गया हमारा एक फिनोमेना। एक फिनोमेना जल्दी से हम और देख लेते हैं। सेकेंड फिनोमेना जो है, आपने सुना होगा कि 4 मिनट, लगभग 2 मिनट मॉर्निंग में और 2 मिनट शाम को जो सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है वो एलोंगेटेड हमें दिखता है। ये आपने सुना होगा, क्यों दिखता है? देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये हमारा होराइजन है, सन का मतलब अर्थ का होराइजन है, इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ, ये देखिए ये तो एक्चुअल अर्थ है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर की। मान लीजिए ये एक एटमॉस्फेयर लेयर हो गई, ठीक है, एक और एटमॉस्फेयर लेयर हो गई, एक और हो गई, तो इस तरह के मल्टीपल लेयर्स होती हैं। जनरली जब हम यहाँ खड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हम कहते हैं हम हैं ऑब्जर्वर, ठीक है, और ये है हमारी अर्थ जिस पे हम खड़े हैं। ये हमारा है एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर। आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल के बीच की दूरियां घटती जाएंगी हमारे एटमॉस्फेयर के, और वो रेयरर होता जाएगा। यानी असल में ऊपर से नीचे आने में रे को कैसा फील होगा? रेयरर से डेंसर आने का एहसास होगा। कैसा होगा? रेयरर से डेंसर आने का एहसास होगा। तो हम इस चीज को लिख लेते हैं, ये है हमारा रेयरर वाला पार्ट और ये है हमारा डेंसर वाला पार्ट, ठीक है। सो व्हेन द सन इज हियर, हम एकदम क्लियर समझते हैं कि सन है हमारा यहाँ पे। एक्चुअल में तो सन हमारी लाइन ऑफ साइट से काफ़ी नीचे है। ये है हमारी लाइन ऑफ साइट या फिर हाइट, ये हमारी है हाइट। हमारे नीचे हमको नहीं नजर आना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि यहाँ से कोई जो सूर्य की किरण चली, इस तरह से चली, ठीक है, वो धीरे धीरे इस सरफेस के पास आ रही है ना, धीरे धीरे वो यहाँ से हाइट में, जैसे जैसे ये सरफेस है सभी से नॉर्मल, यहाँ पे भी कुछ सरफेस रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ सरफेस रहा होगा एटमॉस्फेयर का। सरफेस क्या मतलब? एटमॉस्फेयर रहा होगा। हर बार ये नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ मुड़ती चली जा रही है। देखिए रेयरर से डेंसर में आ रही है ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, फिर अगले लेयर में और उसकी तरफ मुड़ गई, फिर जैसे यहाँ पे आए, ठीक है, अभी तो ये उधर को जा रही थी, ठीक है। हर बार ये एक इस तरह का मान लीजिए नॉर्मल बना, अब इसको नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाना है, हल्का सा एकदम मुड़ना है, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा ये नया नॉर्मल मिला नए सरफेस पे या नए एटमॉस्फेयर पे, तो ये हल्का सा और नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। यानी रेयरर से डेंसर वाला पाथ अपना रही है ये, ठीक है, और इस तरह से, और ये लगातार इस तरह चेंज होते होते यहाँ तक पहुँचती है हमारी आँख तक। यानी ये इसने मल्टीपल रिफ्रैक्शंस किए, और एक्चुअल में हमें कहाँ से रे आती हुई नज़र आ रही है? देखो हमारी नज़र में ये रे ऐसे सीधे आ रही है, यानी कहाँ से आती नज़र आ रही है? ये पीछे कहीं से, यानी सूरज हमको यहाँ नज़र आएगा, जबकि सूरज तो होराइजन के नीचे है ना, हमारी एक्चुअल हाइट के कारण हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन वो ऊपर नज़र आ रहा है। ये है इसकी सन की अपरेंट पोजीशन।
ये है इसकी एक्चुअल पोजीशन, और इसमें लगभग टाइम लगता है एक बार में हम सूर्य के उगने के 2 मिनट पहले उसको देख पाते हैं। अब जब बस 2 मिनट पहले अगर हम उसको देख पा रहे हैं तो शाम को ढलते वक्त भी तो सेम फेनोमेना हो सकता है, और होता है रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक 2 मिनट बाद हम उसको बाद तक भी देख पाते हैं, जब हमारी वो लाइन ऑफ साइट से नीचे चला जाता है, यानी अपनी हाइट के कारण हम उसको नहीं देख सकते, फिर भी वो हमको नजर आ रहा है। तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मिनट जो है वो हम शाम को डिले वाला सनसेट भी देखते हैं। 2 मिनट डिले सनसेट ये भी होता है, और बिफोर ये 2 मिनट बिफोर सनराइज, तो दोनों मिलके कितना हो गया 4 मिनट, यानी हम 4 मिनट दिन का एक्स्ट्रा देखते हैं सूरज को, जितना उसको दिखना चाहिए उससे ज्यादा। तो ये हो गए हमारे एप्लीकेशंस। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू।